ओके, सो एवरीबडी नो व्हाट इज ई कॉमर्स, है ना. आपने सब ने, एवरीबडी हैव डन एट सम टाइम सम शॉपिंग फ्रॉम सम साइट. सो एवरीबडी नोज द नेम ऑफ अमेजन, Flipkart, and you also do shopping from these sites quite often. Okay, so but today we will talk about how this site works or what are the idea of behind these sites. So these are the actually technology that site is using is called e-commerce. So e-commerce means commerce का आप मतलब समझते हैं. Okay, so this is a kind of electronic commerce where you are using all the business activities, purchasing, buying, all that with the help of internet. Okay, so let me define what is e-commerce. So e-commerce is the buying and selling of goods and services. So uh, please note it down that not only good selling is not only the e-commerce. You can also when you are offering services through internet, your some services through internet, that is also a kind of e-commerce. Okay, so e-commerce includes selling of products or offering the services from online mode एंड ट्रांसमिशन ऑफ फंड्स. एक जगह से दूसरी जगह फंड भेजना, डेटा भेजना ओवर सम इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क लाइक इंटरनेट. ऑल दीज एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स. ओके, so generally e-commerce are following four type: business to business, business to consumer. So business to business means two companies are doing business with each other. So we will talk about them later. Business to consumer, we generally refer it as B2C. Consumer to consumer, C2C. Consumer to business, C2B. Okay, now e-commerce and e-business, both term are synonyms, you should remember. Now let's talk about all these type of e-commerce. There is one more type, m-commerce. We will talk that also. Okay, so business to business e-commerce. So business to business e-commerce means this is some electronic exchange of goods, services, or data, or some related things among two business entities. Okay, two business entities. So these two business entities may be two companies. One is manufacturing something, and another company is purchasing parts from somewhere else. For example, suppose that let's take an example of Maruti Suzuki Limited. So that is the company that manufacture cars in India. So it is one of the largest. It is actually the largest and popular car manufacturer in India. Okay, so Maruti Suzuki builds cars, and in order to build cars, they require a lot of components. Those components, they are not built by Maruti. For example, tires. Maruti Suzuki doesn't build tires. Okay, so they need to purchase tires from some other tire company like Apollo or JK Tire or MRF or some other company. Right? So they need to purchase those tires. Right? So generally, what these companies do, they have a set of their suppliers, and they give order automatically to these suppliers, some in some electronic fashion. So generally these company maintains, like Suzuki maintain an inventory of each of the component that they will require for manufacturing. So I have just given example of one component, but the car may require, the Suzuki may require lot of components that may be that are not being manufactured by the company itself. Okay, so they have different suppliers, and they maintain the inventory of these items with that. So Suzuki इन items की एक ऐसा नहीं है कि जब वो कार बनाने जा रही है तब वो कार खरीदने के लिए 4 टायर खरीदने निकलेंगे, है ना. So they maintain a inventory of the tires. Okay, so whenever an inventory, the tires की जो count है एक level से नीचे जाती है, automatically one order is placed with the, let's say car, the Suzuki is purchasing tires from let's say MRF. Okay, so whenever Suzuki have the number of tires below a threshold, automatically an order will be placed to the
company, and also maybe payment may be done in an electronic fashion also. Some advance may be given or maybe full payment may be done. So that depends what kind of MOU both the parties are having. Okay, but they also operate in electronic fashion. So this kind of business is known as business to business, because in that transaction both side companies are involved. One company is purchasing and another company is selling. Okay, and orders are placed electronically and also payments are made electronically. Okay, similarly you can also talk about a company, let's say, that is manufacturing laptops like Dell. So Dell manufactures laptop, but it doesn't manufacture all the components. Okay, like hard disk, they may be using hard disk provided by the Seagate. So they may be putting orders online to Seagate to supply the hard disk, and they may be putting orders to Intel Corporation for providing certain kind of processors, so that can be used. एंड डेल विल मेंटेन ए इन्वेंट्री ऑफ प्रोसेसर्स. ऐसा नहीं कि जब उनको ज़रूरत होगी वो तभी खरीदेंगे. दे मेंटेन ए इन्वेंट्री सो दैट देयर वर्क विल बी स्मूथ, है ना. So this is called business to business e-commerce. Then there is a second kind of e-commerce that is called business to consumer e-commerce. So in that case, actually, so here one side is business organization and second side will be a customer. Okay, so it is a kind of retail part that runs on internet, where some business is selling some product or services. Like now you can see, you can have the example of Amazon. There are lot of items are available that are being purchased by customers. So you are a customer, so one customer is purchasing some products from a company or entity, business entity. So this kind of commerce is known as business to consumer, जहाँ पे consumer directly एक retailer से product खरीद रहा है. ठीक है. So Flipkart and Flipkart, Amazon, or there are some other retailers are also there, online retailer. They provide lot of products and consumers directly उनसे product purchase करते हैं and they deliver them at their premise. So this kind of business is known as business to consumer. Then there is one kind of business that is done between two consumers or a set of consumers. So the सर्विस ऑफरर इज ऑल्सो कंज्यूमर्स. जो सेल कर रहा है वो भी कंज्यूमर है और परचेज कर रहा है वो भी कंज्यूमर है. सो इन दैट काइंड ऑफ सिनारियो इस तरीके का जो ई कॉमर्स हो रहा है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स. लाइक आप यू माइट बी फेमिलियर विद OLX, जहाँ पे एक सपोज यू वांट टू सेल योर फोन, सो यू कैन गो टू द OLX. आप अपने ऐड पुट किया और किसी दूसरे ने दो पार्टी जो कस्टमर इंटरेस्टेड है ही विल कॉन्टैक्ट टू यू एंड ही विल परचेज यू, और देन आप दोनों के बीच में जो भी पेमेंट का मैकेनिज्म है वो उस तरीके से आप पेमेंट कर देंगे. यू मे डू कैश पेमेंट, यू मे डू सम डिजिटल पेमेंट. सो हियर कंज्यूमर टू कंज्यूमर इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जहाँ पर इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट इज परमिटिंग a set of customers to sell and buy products. Okay, so OLX and Quikr are the example of that. Then consumer to business e-commerce, there are certain kind of e-commerce where the companies are purchasing products from consumers. Consumers means simple users, like handicraft items. So some people are making handicraft and one company is purchasing them from a person directly. So handicraft बनाने वाला एक simple person है, so that is called consumer. So let's say you are making some chair of wood, और सिंपली कुछ आप एक लकड़ी का आइटम बना रहे हैं, मिट्टी के कुछ आइटम बना रहे हैं. सो और मे बी हाथ से बने हुए कपड़ा बना रहे हैं, ऑल दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और something you are producing that is being purchased by some company or some organization. So this kind of business is known as consumer to business e-commerce. ठीक है, C2B. ओके, सो इसके एग्जांपल हैं, एक वेबसाइट है लाइक iStock, जहाँ पे आप रॉयल्टी फ्री फोटोग्राफ्स, इमेजेस ये सब शेयर कर सकते हैं. और कई बार इसमें जो मीडिया कंपनीज हैं दे परचेज दीज फोटोज इमेजेस. ठीक है, सो आप अखबारों में कई सारे जो फोटोज़ देखते हैं, कई बार वो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ही जो ना फ़ोटो जनरेट किए हो. दे मे बी दीज फोटोज़ मे बी
सोल्ड बाय सम इंडिविजुअल। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैम पोर्टल भी है जहाँ पे नॉर्मल जो पर्सनस हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, यू कैन पब्लिश देयर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, एंड सम कंपनी और सम ऑर्गेनाइजेशन और मे बी गवर्नमेंट में बी परचेजिंग दोज प्रोडक्ट फ्रॉम देम। सो जैम पोर्टल का आपने नाम सुना होगा, सो दैट इज ए सच काइंड ऑफ पोर्टल। एंड देर आर सम मोर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमर्स जो कि बहुत रिसेंटली पॉपुलर हो रहे हैं, दैट इज और दे आर अवेलेबल एक्चुअली फ्रॉम लॉन्ग टाइम। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, सो वेयर सम गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट बॉडी इज परचेजिंग सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम सम कंपनी। लाइक आपने देखा होगा कि लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है ना गवर्नमेंट किसी से खरीद रही है, या रजिस्टर्स ऑफिस में जो गवर्नमेंट के में इस्तेमाल होते हैं, दे आर बीइंग परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम सम कंपनी। सो गवर्नमेंट कई कंपनी से बहुत सारी चीज़ें खरीदती है, लाइक करंट नाउ डेज वैक्सीन इज बीइंग परचेज्ड बाय गवर्नमेंट। सो दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नाउन एज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर गवर्नमेंट परचेज कर रहा है। सो गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, और इट मे बी ए डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो लाइक योर यूनिवर्सिटी ऑल्सो परचेज, है ना। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक आपकी जो यूनिवर्सिटी है, लेट्स से उन्होंने कंप्यूटर्स खरीदे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से, सो दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नाउन एज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, ई कॉमर्स। ओके, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, समटाइम्स क्या होता है, सरकार जो ना नॉर्मल लोगों से भी खरीदती है, सरकार के कई डिपार्टमेंट्स नॉर्मल पीपल से भी चीज़ें खरीदते हैं या उनको सर्विसेज देते हैं। सो दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नाउन एज कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। सो जनरली इसमें आता है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, टैक्सेस, हेल्थ, बैंकिंग, जिसमें कंज्यूमर और गवर्नमेंट के बीच में सर्विसेज का सेलिंग हो रहा है। लाइक जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सो यू आर पेइंग फी इन ऑर्डर टू गेटिंग द एजुकेशन। सो गवर्नमेंट से आप जो है ना बिजनेस कर रहे हैं एक तरीके से। सो यू आर द कंज्यूमर फॉर द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज योर एक काइंड ऑफ सेलर, एंड समटाइम्स वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा में जनरली या फिर यू आर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट इज गिविंग सर्विसेज एंड यू आर पेइंग टैक्सेस थ्रू दो सर्विसेज। बैंकिंग, गवर्नमेंट बैंक सो आपको सर्विसेज दे रही है। सो दिस काइंड ऑफ ई कॉमर्स आर देयर। देन देर इज वन मोर काइंड ऑफ e-commerce that is quite popular nowadays because of now smartphone have become very much cheaper, so everybody have a smartphone. So now all you can access all these kind of business with the help of mobile also. So this kind of e-commerce is known as m-commerce. So m-commerce एक तरीके से सारे concepts वही है, बस difference क्या है, in that commerce the device are the mobile devices that are being used for doing commerce, like लैपटॉप, पाम और मोबाइल्स, ठीक है। बाकी जो कॉमर्स है वो डेस्कटॉप, सर्वर्स और अदर डिवाइसेस से किया सकता है, बट दो डिवाइसेस आर नॉट नेसेसरली मोबाइल डिवाइस। सो एम कॉमर्स एक नई तरीके की टर्म हमने यहाँ से डिराइव कर ली है सिंपली, जहाँ पे जो मोबाइल डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल शॉपिंग, ऑल द पेमेंट्स आर डन बीइंग मोबाइल। आप आजकल यू कैन डू गैस बुकिंग विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एज वेल, है ना। So these kind of commerce are coming in this category of mobile e-commerce, ठीक है। Now how it works? So e-commerce actually is powered by internet. Without internet you cannot do e-commerce, okay. So e-commerce requires internet. So both the parties are available on internet. They are accessing their services with the help of internet. So they use browsers to, for example, you are a consumer, so you put some order, so you require a software that is called browser. So with the help of browser you place orders and purchase some service or product, है ना। And in order to do that you require a device, ठीक है, that will allow you to put order for some product, okay, with some e-commerce entity. Okay, so whenever you put a order, what happens? Generally आप browsers, so you do browsing, आपके पास एक portal available है where lot of products are available and you choose some product that you want to purchase. So आप उसके लिए product के लिए क्या करते हैं, you put that product, add that product or some set of products in your cart. So these e-commerce companies uses concept of cart
लाइक आप जब मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो यू हैव ए कार्ड जिसमें आप अपने आइटम्स रखते जाते हैं. सिमिलरली यू कैन डू दैट ऑन ई कॉमर्स साइट एज वेल. सो आपने कई आइटम्स चूज किए, उनको रखा एंड उनके प्राइसेस भी हैं एंड यू प्लेसेस देन ऑर्डर. ओके, सो ऑर्डर प्लेस करने पर क्या होता है, व्हेन यू प्लेस योर ऑर्डर, so the data related to your order is forwarded to a central server that is called order manager. So each of e-commerce entity will have a central computer, you can call it server, that is actually called order manager. So apne orders related data is communicated to the order manager. Now what order manager will do, this order manager will forward this data to a inventory manager, you can say. So there is a computer or a server that is managing the inventory and साथ साथ एक मर्चेंट सिस्टम विल ऑल्सो बी देयर. ओके, सो इन्वेंट्री मैनेजर का काम क्या होगा कि आपका जो डेटा है, जो ऑर्डर मैनेजर ने इन्वेंट्री मैनेजर से बात की एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि आइटम अवेलेबल है कि नहीं है. अगर आइटम अवेलेबल है इन्वेंट्री में, ठीक है, सो ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड. ठीक है, सो इट इज जस्ट ए काइंड ऑफ वेरिफिकेशन कि आइटम इज अवेलेबल और नॉट. और अगर आइटम अवेलेबल है देन आपको इन्वेंट्री से आइटम को, चूंकि वो ऑर्डर में चला जाएगा, सोल्ड आइटम्स की में चला गया है, तो आपको इन्वेंट्री में से उस आइटम की क्वांटिटी जितनी सोल्ड हुई है उतनी घटा देनी है. और अगर एक लेवल से नीचे उस आइटम की इन्वेंट्री चली गई है तो ऑटोमेटिकली अपने करस्पॉन्डिंग सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देना है. ठीक है, सो कंपनी दी, सो इन्वेंट्री जो मैनेजर है इट विल डू ऑटोमेटिकली दैट थिंग. ठीक है, सो ऑर्डर मैनेजर का काम है पहले इन्वेंट्री मैनेजर से कम्युनिकेट करना, कंफर्म कर लेना कि आइटम अवेलेबल है. आइटम अवेलेबल है तो कितने आइटम परचेज किए गए उतने आइटम इन्वेंट्री में से घटा देने हैं. और अगर इन्वेंट्री में थ्रेशोल्ड से नीचे आइटम्स की काउंट चली गई तो ऑर्डर प्लेस भी कर देना है सप्लायर को, जो भी सप्लायर है उस प्रोडक्ट का. और नहीं है देन देयर इज नो इशू, बट इन्वेंट्री को अपडेट करना पड़ेगा. देन देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग इन्वॉल्व देयर, मर्चेंट सिस्टम. सो मर्चेंट सिस्टम का काम क्या है, इट वेरीफाइज और इट एक्चुअली कॉन्टैक्ट्स टू योर पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बैंक होगी, जनरली बैंक या कोई पेमेंट वॉलेट कंपनी होगी. सो वेयर योर पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी वैलिडेटेड दैट कि जितने का आप परचेज कर रहे हैं दैट अमाउंट इज अवेलेबल इन योर अकाउंट और नॉट, एंड देन मेड एक पेमेंट नीड टू बी मेड. सो दैट पेमेंट विल बी डन. सो इसके लिए जनरली आप पेपल, जो एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, या बहुत सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म अब नाउअडेज अवेलेबल हैं. यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट प्लेटफॉर्म. सो ये जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है इनका रोल है कि आपके बैंक से या जो आपका जो वॉलेट कंपनी है उनसे कम्युनिकेट करके पेमेंट की इंफॉर्मेशन निकालना और फिर एक पेमेंट कराना. और वंस दीज थिंग्स आर डन यू आर रीडायरेक्टेड बैक टू द ऑर्डर मैनेजर. जब सब कुछ ठीक हो गया तो आपको ऑर्डर मैनेजर की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा वापस से, एंड देन ऑर्डर मैनेजर विल मेक ए ऑर्डर एंड इट विल नोटिफाई यू. ठीक है, कि योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड एंड दैट इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी गिवन टू द सेक्शन दैट विल हैंडल डिस्पैच ऑफ द आइटम्स. ठीक है, और डिस्पैच जो सेक्शन है वो फिर टेक केयर करेगा कि आपको प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है. सो दिस इज हाउ द ई कॉमर्स इज डन. नाउ लास्ट टू थिंग्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. बहुत आसान है, एवरीबडी नोज व्हाट आर द एडवांटेजेस. अवेलेबिलिटी 24/7 आवर्स अवेलेबिलिटी होती है आपका. जैसे आप ऑफलाइन मार्केट में परचेज करना चाहते हैं तो मार्केट पूरे टाइम ओपन नहीं होता है. देयर आर सर्टेन आवर्स जिस समय मार्केट पूरा बंद मिलेगा, यू कैन नॉट परचेज. बट ई कॉमर्स पर आप 24/7 आवर परचेजिंग कर सकते हैं. दिस इज वन एग्जाम्पल. स्पीड ऑफ एक्सेस, आप आसानी से आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन गो थ्रू द लिस्ट ऑफ आइटम्स, है ना, जो कि आप सो परचेजिंग बहुत तेज़ी से हो सकती है आपकी. सो स्पीड ऑफ एक्सेस, वाइड अवेलेबिलिटी, वैरायटी ऑफ आपको आइटम्स की वैरायटी इतनी आसानी से और वाइडली अवेलेबल होगी कि यू कैन हैव डिफरेंट ऑप्शंस, जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट में अपनी सिटी में जब आप रह रहे हैं वहाँ जाते हैं तो उतनी आपको वैरायटी आइटम्स में देखने को नहीं मिलेगी. सो दैट इज़ वन अनदर एग्जांपल. ईजी एक्सेसिबिलिटी, आप घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर कर लिया. सो दैट इज द थिंग्स आर वेरी ईजी और घर से ही पेमेंट भी हो गया. इंटरनेशनल रीच, इवन आप अपनी कंट्री से ही नहीं या अपने डिस्ट्रिक्ट से नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने से आप आइटम परचेज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस साइट से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं. सो इंटरनेशनल रीच है. दैट मीन्स अब आप एक ज्योग्राफी तक नहीं लिमिटेड हैं, क्योंकि जनरली आप जो ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें क्या है, यू आर लिमिटेड. आप एक अपनी सिटी में ही तो शॉपिंग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत ईजिली आप दूसरी सिटी में या कहीं से जाके शॉपिंग कर लेंगे. सो वन आइटम दैट इज अवेलेबल इन केरल, यू कैन गेट दैट आइटम इन बिहार, है ना.
सो आप देश के या दुनिया के किसी भी कोने में अवेलेबल आइटम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो कि ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। लोअर कॉस्ट, समटाइम्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कंपेयर करके, सो यू माइट बी एबल टू गेट द आइटम्स इन सम लोअर कॉस्ट। ठीक है, कुछ आइटम महंगे भी मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है, बट जनरली जो ई कॉमर्स साइट्स हैं दे जनरली इसमें जो मिडिल लेवल की जो चेन है उसको वो मिनिमाइज कर देते हैं, तो दैट्स वाई आइटम आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली चीपर मिल सकता है। Personalization and product recommendation. Nowadays, e-commerce sites are using artificial intelligence and recommendation system very often, so that वो आपके चॉइस के आइटम्स आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करने लग जाते हैं और आपके प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी मिलते हैं, है ना, सो दैट योर एक्सपीरियंस बिकम्स मोर बेटर। डिसएडवांटेज, लिमिटेड कस्टमर सर्विस। ई कॉमर्स साइट में कस्टमर सर्विस काफ़ी पुअर है, मे बी इन फ्यूचर इट मे बी बिकम बेटर। नॉट बीइंग एबल टू टच और सी, आप प्रोडक्ट को मतलब प्रॉपर देख छू करके और देख नहीं सकते हैं, जस्ट इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। वेट टाइम थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप ऑफलाइन मार्केट में परचेजिंग करने जाते हैं, यू जस्ट सी द आइटम, आपने देखा और पेमेंट किया और तुरंत आप लेके आ गए, आपको आइटम मिल गया। बट ऑनलाइन में आपको डिलीवरी के लिए वेट करना पड़ेगा, है ना, 2-3 डेज लगते हैं। देन देर आर सर्टेन सिक्योरिटी इशूज आर यू मे फेस समटाइम्स। कई लोग जो ना फेक वेबसाइट्स बना करके और जो कि एकदम ओरिजिनल साइट्स जैसी दिखेगी, वहाँ से आपको आपके क्रेडेंशियल्स चुरा सकते हैं, आपको गलत आइटम बेच सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो हैपन्स इन केस ऑफ ई कॉमर्स। सो दीज आर द सम ड्रॉबैक्स ऑफ ई कॉमर्स। Okay, so that's all from e-commerce. So let me close. If you have any question, you can ask.